اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر بڑی پیاری آ رہی ہے کہ گزشتہ کل الحمدللہ حماس کے مجاہدین نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کو زبردست نقصان پہنچایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے 24 گھنٹوں کے اندر 75 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم میں پہنچا دیا، ہلاک کر دیا، اور اسرائیل کی کئی گاڑیوں کو، کئی فوجی ٹینک کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی حماس نے کیا ہے۔ تل ابیب پر یعنی اسرائیل کے سینٹر پر زبردست انداز میں مجاہدین نے، حماس نے راکٹوں کی برسات کی۔ کمال عدوان اسپتال سمیت کئی مقامات پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا۔ درجنوں فلسطینی گزشتہ کل بھی شہید ہوئے ہیں۔ محلہ شیخ رضوان، بیت لاہیہ اور بیت حانون میں اسرائیلیوں کی اور مجاہدین کی شدید جھڑپیں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال غزہ اور فلسطین میں 20 لاکھ عوام بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائی کا گزشتہ کل 59واں دن تھا، یعنی آج 60واں دن، یعنی پورے 2 مہینے مکمل ہو چکے۔ غزہ پر جارحیت کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تحریک کے جانبازوں نے، مجاہدین نے دشمن فوج کے ٹھکانوں اور یہودی بستیوں پر زبردست انداز میں راکٹ فائر کیے ہیں، اور مجاہدین نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 75 اسرائیلی یہودی صہیونی آتنکوادی فوجیوں کو الحمدللہ جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ ایادن ریاست راجستھان سے ہمارے رپورٹر عبد القیوم نے بڑی اہم خبر بھیجی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ راجستھان کا رزلٹ آ گیا، نتیجہ سامنے آ گیا، بی جے پی وہاں پر جیت گئی، لیکن ایک خبیث جیتتے ہی اس نے اپنے اندر کا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے خلاف بولنے میں جلدی شہرت مل جاتی ہے۔ اس خبیث کو میں بھی نہیں پہچانتا تھا، آپ بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن اب شہرت مل گئی، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف بولنے یا مسلمانوں کے خلاف کام کرنے سے فوراً آدمی چرچا میں آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مکھیہ منتری کی دوڑ میں ہو۔ یہی خبیث ہے جس کا نام ہے، جو ابھی نیا ایم ایل اے بنا ہے،
جی ہاں، بال مکند اچاریہ महंत कहते हैं, लेकिन गुंडागर्दी और आतंकवाद की मिसाल बनने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में मुस्लिम ताजिरों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। नॉनवेज की दुकानें हटाई गई, जय श्री राम के नारों के दरमियान कार्रवाई की गई, मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां भी दी गई, और ये खबीस जो है सिर्फ 600 वोटों से जीता है, ओनली 600 वोटों से जीता है। और यही वो खबीस है कि जिसका प्रचार और प्रसार करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी रोड शो करने के लिए आए थे। अब इसका घमंड, इसका गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है, और पहले ही दिन अभी शपथ भी नहीं लिया है, शायद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, शपथ भी नहीं लिया है कि खुद रास्तों पर उतर गया और मुसलमानों की होटलें और नॉनवेज के दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने लगा। खैर, बहुत जल्द मशहूर हो गया है, लेकिन इसको मैं इतना ही कहूंगा कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नहीं है, और तुम्हारा लहजा बता रहा है ये गुंडागर्दी नई नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में रिजल्ट आते ही बीजेपी के जो घटिया किस्म के असरात होते हैं, नीच और बिल्कुल बदनुमा असरात होते हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के, वो नजर आने लगे हैं। और ये खबीस खुद भगवा ड्रेस पहने हुए हैं, अपने आप को संत और महंत बताता है, लेकिन इसकी गुंडागर्दी बता रही है, इसका आतंकवाद बता रहा है कि ये संत और महंत के नाम पर धब्बा है। अगला दिन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर कफील खान का नाम आपने सुना होगा, जो योगी आदित्यनाथ की स्पेशल दुश्मनी का निशाना बना था, लेकिन अल्लाह ने कफील खान को कामयाब किया। खैर, कफील खान की आप बीती पर एक किताब लिखी गई, उस किताब को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, तनाजा खड़ा हो गया है, और मुकदमा दर्ज हो गया है, तहकीकात शुरू हो चुकी है। इस किताब पर जो कफील खान की आप बीती बयान करती है, इस किताब पर मजहबी जज्बात को भड़काने और नफरत फैलाने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के LD1 कॉलोनी सेक्टर 1 के रिहायशी ताजिर मनीष शुक्ला के मुताबिक वो किसी काम से माताजी की बगिया गए थे, जहां पर एक पान की दुकान के पीछे 4-5 लोग बातचीत कर रहे थे, और ये सभी हुकूमत और आला अफसरान के खिलाफ गलत तबसरे कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर कफील खान ने खुफिया तौर पर एक किताब शाये करवाई है और उसे रियासत भर में तकसीम किया जा रहा है। खैर, गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज के साबिक मुलाजिम एक्स सर्वेंट डॉक्टर कफील खान और 5 दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ लखनऊ के कृष्णनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि डॉक्टर कफील और उनके साथी हुकूमत के खिलाफ मुबैना तौर पर साजिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अपनी किताब को एक खास तबके में तकसीम कर रहे हैं। किताब में हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मवाद होने का दावा है। मणिपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, ये मणिपुर 7 महीने से जल रहा है। अभी 8 दिन पहले गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह का बयान आया था कि मणिपुर में भाई बहनों हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी हासिल की है मणिपुर में। इंटरनेट बहाल होते ही मणिपुर में फिर फायरिंग शुरू हो गई और गुज़िश्ता कल 13 लोगों के हलाक होने की, मरने की खबरें आ रही है। मणिपुर हुकूमत ने 3 दिसंबर को कुछ इलाकों को छोड़कर रियासत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 18 दिसंबर तक के लिए बहाल किया था। इसके बाद ये फायरिंग का पहला मामला आया है। आसाम राइफल के मुताबिक इलाके के एक मुखालिफ ग्रुप ने म्यांमार जा रहे ग्रुप पर हमला कर दिया। मारे गए लोगों की अभी शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन 13 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। सरमाई इजलास शुरू हो चुका है। सरमाई इजलास में कांग्रेस ने बहुत ही अहम मुतालबा किया कि कतर में फंसे बहरिया अफसरान को हुकूमत जल्द रिहा कराए। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें मुख्तलिफ इशूज उठाए गए। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वक्फे सफर के दौरान बहरिया के 8 एक्स अफसरान को कतर की अदालत की तरफ से सुनाई गई मौत की सजा के मामले को उठाया और कांग्रेस ने यह मुतालबा किया है कि कतर में फंसे हिंदुस्तानी बहरिया अफसरान को हुकूमत हिंद जल्द रिहा कराए। मिजोरम का रिजल्ट भी सामने आ गया, नतीजा सामने आ गया इलेक्शन का। खबरें आ रही है कि मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट को खुली, वाजे और बड़ी अक्सरियत बहुमत मिला है। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ
रहने वाले और साबिक IPS अफसर कि नई पार्टी ने मिजोरम में हिस्ट्री बना दी, तारीख रकम कर दी। 27 सीटों पर इस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। मिजोरम असेंबली इलेक्शन की 40 सीटों का रिजल्ट आया है। इस बार नई नवेली पार्टी जोर पीपल्स मूवमेंट ZPM ने 27 सीटें जीतकर अब मिजोरम की वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साबिक IPS अफसर और इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ की नई पार्टी ने तारीख रकम करते हुए बरसरे इख्तिदार पार्टी समेत बीजेपी और कांग्रेस को भी जबरदस्त पटखनी दी है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। अगला दिन नागपुर से बड़ी खबर आ रही। नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि गुज़िश्ता कल हज 2024 के ऑनलाइन आवेदन कार्यालय का उद्घाटन अमल में आया। जमीयत उलमा जिला नागपुर की ओर से साल 2024 के हज जाने वाले आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के कार्यालय का उद्घाटन श्री जयेश भंडारकर SP साहब और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद मसूद साहब के हाथों ऑनलाइन हज आवेदन की शुरुआत दफ्तर जमीयत उलमा तकिया महबूब शाह मोमिनपुरा में 6 दिसंबर को अमल में आई। इस मौके पर SP साहब और इलाके के सभी अफसरान और जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मैं शहर नागपुर और इलाके नागपुर और विदर्भ के लोगों से ये अपील करूंगा कि वो फौरन इस खबर को समझें और हज ऑनलाइन फॉर्म 2024 के शुरू हो चुके हैं। जमीयत उलमा नागपुर के दफ्तर कार्यालय पर आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। और अब ये सुविधा मोमिनपुरा नागपुर में 6 दिसंबर से 20 दिसंबर रात 9 बजे से रात 11 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म के लिए मोहम्मद शहाब अजहर और मोहम्मद वसीम अंसारी वहां पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर इस प्रोग्राम में अतीक कुरैशी, जाहिद अंसारी, अब्दुल अलीम खान, सिराज अहमद, ऐसे ही हाफिज मुख्तार, शरीफ अंसारी, जाहिर अकरम, मोहम्मद अशफाक बाबा, हाजी एजाज पटेल, ऐसी गौस मास्टर, जाहिर अकरम, मास्टर फुरकान, इस्लाम जाफरी, रफ़ी अहमद, सलीम बाबूलाल, सईद प्यारे, शहबाज अख्तर, नदीम अख्तर, उसामा अंसारी, अथर परवेज, बिलाल अंसारी वगैरह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अगला दिन बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि 4 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के नताइज आए हैं। इन नताइज को लेकर अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मौके पर मायावती जी ने इलेक्शन के नतीजों पर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा है कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज पुरअसरार है। मायावती जी ने इन नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि एक पार्टी के हक में आए इंतखाबी नताइज अवाम के गले से नीचे नहीं उतर रहे। ये एक पुरअसरार मामला है जिस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। वहीं पर बाकायदा इन नताइज और इन रिजल्ट्स को देखकर EVM पर फिर बड़े पैमाने पर सवाल उठने लगे हैं और लोग EVM के ताल्लुक से बात करने लगे हैं। यहां तक कि मैं आपको कहूं कि संजय राउत, जो महाराष्ट्र के संजय राउत, इन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए यह कहा है कि तुम सिर्फ एक इलेक्शन बैलेट पेपर पर करके दिखाओ। 4 रियासतों के नताइज के बाद महाराष्ट्र की सियासत भी सरगर्म हो चुकी है और संजय राउत ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है कि EVM इलेक्शन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर करके दिखाओ, बैलेट पेपर पर करके दिखाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी ये सीधा सवाल उठ रहा है EVM पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। मेरा जुमला आपने इससे पहले भी सुना होगा कि मैं कहता हूं कि मोदी जी या बीजेपी की जान जो है वो EVM में है। EVM हट जाएगी, ऑटोमेटिक बीजेपी खत्म हो जाएगी।
नाज़रीन, इस वक्त समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर बरौनी रेलवे सेक्शन से बड़ी अजीब और गरीब अफसोसनाक खबर आ रही है कि टिकट के विवाद को लेकर, टिकट तनाज़े को लेकर टीटीई ने, जिसे हम टीसी भी कहते हैं, टिकट चेकर, टीटीई ने मुसाफिर को ट्रेन से फेंक दिया। मथुरा ट्रेन का यह वाकया बताया जा रहा है। तशवीशनाक हालत में उस नौजवान को जिसे टीसी ने फेंका उसे पटना रेफर कर दिया गया है। जख्मी मुसाफिर ने टीटीई पर उसे चलती ट्रेन से फेंकने का संगीन इल्जाम लगाया है। मामले के हवाले से मिली इत्तला के मुताबिक मुतासरा रेलवे मुसाफिर की शनाख्त सगोली थाना इलाके के भाथुर तिकोलिया पंचायत के नवल प्रसाद के तौर पर की गई है। ट्रेन में मुतासरा के साथ सफर कर रहे दीगर मुसाफिर के मुताबिक मथुरा ट्रेन से हावड़ा जा रहा था। वही टिकट टीसी ने उसे ट्रेन से उतरने या फिर फाइन भरने को कहा और इसी पर विवाद हुआ और टीटीई ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। आइना दिन हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक घटिया हरकत की और वहां पर भी इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो मुस्लिम दुश्मनी से भगवा टोला खुश होता है। हलाल को लेकर एक नया तनाजा उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खड़ा किया, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक अहम जिम्मेदारों में से हजरत मौलाना अतीक बस्तवी साहब ने यह बयान दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन पर कदगन लगाने की वजह से मुल्क को, प्यारे देश को माली खसारा और माली नुकसान होने का अंदेशा है। मौलाना अतीक बस्तवी साहब ने कहा कि इससे मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं होगा।